मैंने कुंफू पैंडा का आपको लिंक शेयर किया था ना, टू वॉच इट ओवर द वीकेंड. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट अ चांस और टाइम टू वॉच इट? अश्विनी गॉट इट. व्हाट अबाउट अदर्स? किसी और ने भी देखा? आई थिंक कृष्णा सॉ इट. व्हाट अबाउट अदर्स? किसी और को टाइम मिला था देखने का मूवी? यस आर्यन, you have raised your hand. Bolo. Okay, Janvi also saw it. Okay, we cannot watch this during the class, but I gave you a link. Usme chote chote videos hain for the movie. It is a very beautiful movie. There are 3 parts to the movie. First part मैंने share किया था, and that movie we will keep it as a theme for this last unit that we will be starting in February. ठीक है? उसके बारे में I'll let you know later. I'll share my screen first. Janvi, can you see my screen? Give me a thumbs up. Okay, I think you got it. Great. Janvi, read it. क्या लिखा हुआ है? Read it. Wait, Didi. Think and answer for yourself. Your real. Just a second. Sorry. हाँ. Your strength. Oh, I'm sorry. Hana, please don't annotate, बच्चे. Don't annotate. Hana, 1 minute रुको. Janvi, yes. Now you can read. Think and answer yourself. Your real strength comes from being the best you can see. Who are you? What are you good at? What makes you you? Okay, thank you so much, Janvi. So there is a this is a very famous quote from Kung Fu Panda, and it is a learning from the movie that your real strength comes from being the best you can be. Okay, everybody is different, everybody is unique, right? Your strength is being who you are as a person. सब लोग अलग अलग होते हैं ना, सब एक से नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं. हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरे में नहीं होता, right? So being the best you is your biggest strength. तो अपने ऊपर काम करो and be the best version of yourself. आप सबसे अच्छे कैसे हो सकते हो वो बनने की कोशिश करो. Think who you are, what are you good at, and what makes you you, right? Satpreet is Satpreet. How is Satpreet unique? धनश्री तो सतप्रीत जैसी नहीं है, राइट? ना मैं सतप्रीत जैसी हूँ. सतप्रीत में कुछ ऐसा है जो उसे अलग बनाता है बाकी सबसे. वैसे ही आप में कुछ ऐसा है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाता है, राइट? So just think what makes you you, what is different in you, and what you can work on and make your strength. ठीक है? You have to think and answer it for yourself. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Just think of it whenever you get time. ठीक है? We will move with the class. Last time on Wednesday, I asked this question to you, all of you. How have been your sleep this week? ठीक है, मैंने last time आपसे पूछा था, and most of us were like very little sleep, या फिर we were not having good sleep, we were having trouble sleeping. Then I shared a list of things that you could do to improve your sleep. We also had a discussion in the class. Now think of how your sleep was this week. ये last हफ्ते कैसे थी आपकी नींद? आपको अच्छी नींद आई कि नहीं आई? How was your sleep? Type on the chat box. And any of you tried anything different जिससे आपकी नींद अच्छी हो पाए? Then please share with the class. Raise your hand and share with the class. Okay, Ashwini, thank you for starting us off. Thank you, Sakshi. Okay, I see Dhanshri, Ashwini raising hands. Yes, Dhanshri, bolo. You had trouble sleeping last time, right? अभी बताओ कैसे? हेडफोन लगा के सॉन्ग लगाया और ना सो गई, तो जब मेरी मम्मी आई वो हेडफोन निकाल के साइड में रख दिया. Okay, great. So Dhanshri actually tried listening to some music and she slept. Music is a good way. Dhanshri, next time ना headphone लगाने के की वजह speaker पे चलाना, because headphone can cause harm to your ears अगर आप बहुत देर तक लगाए हो. ठीक है? So headphone हटा के सिर्फ speaker पे गाना चलाना थोड़े टाइम पहले and you'll fall asleep.
Yes, Ashwini, did anybody try anything else? Please do share with us. Yes, Ashwini. Didi, there was fan noise na. Then I take 2 blankets and because of मच्छर के लिए मैंने फैन शुरू ही रखा और 2 ब्लैंकेट लेके सो गई. Great. Okay, so good techniques we adopt. Very good. It's good to know that you had good sleep. Riya actually meditated. Not करते nice. फोन. Pallavi didn't had nice sleep. Krishna slept too much. Prem had good sleep. Okay, I will share another document where you can look at ways that you can try. Too much sleep is also not very good, है ना? बहुत ज़्यादा नींद आना भी अच्छा नहीं है. इसका मतलब ये है कि हम हम साउंड स्लीप नहीं है हमारी. हम अच्छे से हम सोते तो बहुत देर है पर हम बहुत अच्छे से नहीं सोते हैं. We don't have deep sleep. So too much sleep is also not a good sign. It can be a sign of lethargy. Physical active exercises include karo Krishna. है ना, and try different things, something would work out, but सोना बहुत जरूरी है. Okay, I'm glad some of us improved on our sleeping levels. Okay, great. Okay, I can get you, Pallavi. Okay, who would tell me the norms of the class? Who would tell me the norms of the class? Let me ask. Who do I ask? Sainath, please rename yourself, बच्चे. Shravani, what are the norms of our class? What is the first norm? Shravani. Good evening, Vilas. Shravani, quick, bache. What are the norms of our class? What is the first norm? Shravani, are you there? Okay, I move to Piyush. Yes, Piyush. What are the norms of our class? Yes. Idea is what Piyush has to say. Okay. Yes, Vinayak. Didi, the first norm is thinking and answering. Okay, think and make connections. Very close, Vinayak. We have to think and we have to relate to whatever we are learning in our lives also. Okay, so thinking and making connection is the first norm. Very good. Thank you, Vinayak. Thank you, Piyush. Yes, it could be ideas in a way too. The next norm, yes, Dhanshri. Didi, working together. Okay, working together is what Dhanshri has to say. Close enough. Yes, Krishna. Participate. Yes, participate is the next norm. ये हर class का norm होगा. ठीक है, to participate in the class is the norm for all our classrooms. Thank you, Krishna. Thank you, Dhanshri. And the last one, Karthik, what is the last one? Make notes. Yes, so making notes. And do you make notes, Karthik? No. Then how don't you follow the norms of the classroom? Why don't you follow the norms? नहीं मिस मैं टेक्स्ट में लिखता हूँ नोट्स में लिखता हूँ वो नोट्स ऐप है ना उसमें सेव करके रखो. Okay, और उससे पढ़ाई कर लेते हो. ठीक है, I'm okay if that works for you. If taking screenshots or making notes online works for you, then I'm okay. But noting down मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उससे याद रहता है. ठीक है. So if you're not writing also, I would not encourage you to take screenshots or write on type somewhere because at the end of the day आपको लिखना है. Yes. But if that works for you, then okay. ठीक है. So who would tell me where were we in the last class? हम क्या पढ़ रहे थे? Prachi, what were we studying in the class? क्या topic पढ़ रहे हैं हम? Yes. जल्दी जल्दी unmute करो और बताओ. Rest of you can type on the chat box. ठीक है, बाकी सब chat box पे type कर सकते हैं. Yes, Prachi. Didi, I joined now. That's why I am telling. तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चे? मैं तो लास्ट क्लास का पूछ रही हूँ. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? Vilas, you tell me which chapter are we studying?
विलास, What दीदी? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? 2 and 1 that houses. दीदी हाँ विलास बोलो। बोलो। Thank you, Ayan, Ashwini, typing on the chat box. Anas, which chapter are we studying? कौन सा chapter पढ़ रहे हैं हम? What is the subject that we are studying? दीदी मैं लेट ज्वाइन हुआ था। अनस, हम पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे हम ज्योग्राफी में? थैंक यू पीयूष फॉर टाइपिंग ऑन द चैट बॉक्स। बाकी सब क्या कर रहे हैं? हम क्लास में, हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, थैंक यू कार्तिक फॉर टाइपिंग ऑन द चैट बॉक्स। थैंक यू विनायक। Okay, we are actually studying rocks and types of rocks. It is chapter number 7 in geography. ठीक है? I know कि एक हफ्ता हो गया है क्लास को. We had this class last week. You could forget it, but please have this in your memory. हम क्या पढ़ रहे हैं? मैंने आपको homework दिया था to read the chapter again, right? So you should have read it and you should have known कि हमने क्या पढ़ा. ठीक है? Great. So I'll quickly ask few questions to revise whatever we have studied earlier, and then we will proceed with the last topic. Okay? It's okay, Satpreet. Okay, so the first question is, the process of weathering and erosion produce which type of rock? Okay? Everybody will type on the chat box. Everybody will type the response on the chat box. Erosion or weathering से कौन सा rock produce होता है? Please type on the chat box. Okay, Sakshi. Sakshi has responded. What about others? Okay, thank you, Vinayak, Ayan. I want 28 responses. ठीक है, अभी मेरे पास 4 आ गए हैं. I want 24 others to respond. No raising hands. Type on the chat box. Everybody. Harshada, the question on the screen. The process of weathering and erosion produces which type of rock? हमने last class में पढ़ा था weathering और erosion के बारे में, and which type of rock is formed using weathering with the phenomena of weathering and erosion. Thank you, Ashwini, Kartik, Dhanshri, Piyush. Everybody, Aryan and Anas has responded. Aryan on the chat box, Fiza, Hari Vittal, Prem, Sainath, Shravani, Sufyan, Vilas, Vivek, Yash, Kedar, सबका response चाहिए मुझे on the chat box. Sumit, okay, thank you, Hari Vittal. Hari Vittal, type the spelling, ठीक है? इससे आपको spelling भी याद होगा. Type it. Don't write 1, 2, 3. Type it. Okay. ठीक है. I am still waiting for others to respond. Sakshi, Madhur, tell me बच्चे कि ये why do you think it would be metamorphic rock? Why it is metamorphic rock? Why do you think? Sakshi, unmute करो and बताओ. And thank you for putting up this picture of ours on your DP. Okay, quickly tell me बच्चे. Sakshi, unmute करना है. Pallavi, you tell me why it is metamorphic rock. Pallavi.
मेटामॉर्फिक दीदी, क्यों मेटामॉर्फिक है पल्लवी? because in that there is weathering and erosion. पर हमने मेटामॉर्फिक रॉक अभी तक पढ़ लिया है क्या क्लास में? Did I tell you in detail about metamorphic rocks? Yes or no? Okay. Metamorphic is not the right answer, Sakshi and Pallavi. ठीक है, metamorphic is not the right answer. Some of you have mentioned metamorphic. Ayan, which type of rock will be this? The type of will be sedimentary rock. Okay, why sedimentary rocks, Ayan? Because the process was weathering, then erosion, then it deposition, then cement, then directly compaction, then cementation. ओके ओके, थैंक यू सो मच आयान। तो वेदरिंग और इरोजन से सेडिमेंटरी रॉक बनता है। क्यों? क्योंकि बारिश होती है या हवा चलती है या आइस जमता है, उससे जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, देन दे गेट ट्रांसपोर्टेड। ये इरोजन होता है। इरोजन इज वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन। सो इरोजन होता है और एक जगह कहीं पे दे गेट डिपॉजिट, लेयर बाय लेयर बनती जाती है। कभी कभी फॉसिल्स भी चले जाते हैं, and all of this gets cemented together over many years and they form sedimentary rocks. ठीक है? Some of you have also said that these are igneous rocks. Please remember, मैंने last class में भी कहा था igneous rocks कैसे बनते हैं? They are formed with via the magma or the lava that comes out. ठीक है, जो लावा वोल्केनो से आता है उससे बनते हैं। These are the primary rocks, या फिर मैग्मा जो कि below the earth होता है उससे बनते हैं igneous rocks. Remember this. These are some keywords. Weathering, erosion, fossils are related to sedimentary rocks. Volcanoes, lava, magma are related to igneous rocks. ठीक है? So remember this. ये मैंने last class में भी आपको clue दिया था. Okay, next. Fossils are found in sedimentary rocks. Is this statement true or is this statement false? यश, आप बताओ मुझे। Fossils are found in sedimentary rocks. Is this statement true or false? यश, यश अनम्यूट करके बोलो। When I ask you to unmute, you have to unmute. Yash, unmute and speak. Vilas, you tell me the answer. Fossils are found in sedimentary rock. Is this true or is this false? Vilas. Didi, it is false. अभी मैंने 1 मिनट पहले जब मैं आपको बता रही थी कीवर्ड्स, तभी आपको बताया कि सेडिमेंटरी रॉक कैसे बनता है। बताया ना मैंने कैसे बनता है? बताओ कैसे बनता है सेडिमेंटरी रॉक? That like in down now. हिंदी में बताओ विलास, कैसे बनता है सेडिमेंटरी रॉक? वो शेप के जैसा वाकड़ा टुकड़ा बनते। वो जो टुकड़े टुकड़े होते हैं वो बह के जाता है, कहीं एक जगह इकट्ठा होता जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, सैंड के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, रॉक्स के, फॉसिल्स हो सकते हैं, उसमें डेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स हैं वो सब हो सकते हैं। ये सब एक दूसरे के ऊपर से लाखों सालों में तब जाके सेडिमेंटरी रॉक बनता है। Fossils are found in sedimentary rocks is a true statement. ठीक है? igneous rocks में नहीं होते fossils, metamorphic rocks में भी नहीं होते fossils, sedimentary rocks में ही होते हैं fossils. ठीक है? Remember this. हाँ विलास बोलो।
You are telling now that how shape come out that laser. That is false. That not come a shape like these lasers. ये जो इमेज है एग्जैक्टली वैसी नहीं होगी। हाँ, लेकिन हाँ। छोटे मोटे फॉसिल्स भी हो सकते हैं, पर ये कहीं पाई गई होगी इसलिए ये इमेज थी। सो डोंट वरी, ऐसा फॉसिल भी हो सकता है, ठीक है। छोटे छोटे फॉसिल्स भी हो सकते हैं, लीफ के पत्ते या छोटे छोटे डेड रिमेन्स, फिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन फॉर अ रॉक टू बी एक्सट्रूसिव, ठीक है। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं, हमने पढ़े थे कि इग्नियस रॉक्स टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सो एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं, what are extrusive igneous rocks? Yes, Satpreet, what are extrusive igneous rocks? From magma have rounded edges formed from heat and pressure, form of lava, formed by heat. I'm sorry, Satpreet, I just, yeah. Didi have rounded edges formed from heat and pressure. अच्छा, होते क्या है igneous rocks, मुझे ये बताओ सतप्रीत, what are igneous rocks? Didi have rounded edges formed from heat and pressure. Okay, Krishna, you tell me, what are igneous rocks? Igneous rocks are that made from lava or magma. Okay. Lava. Extrusive igneous rocks क्या होते हैं? Intrusive igneous rock means it is made outside the volcano, not inside the volcano. Right. It is from Extrusive होते हैं जो बाहर बनते हैं, वोल्केनो से बाहर बनते हैं, that is from lava, ठीक है? it is formed from lava. Answer. Right, exactly. So the correct answer is extrusive igneous rocks are formed from lava. वो लावा से बनते हैं, क्यों? क्योंकि वो वोल्केनो के बाहर जो लावा होता है वो जब ठंडा हो जाता है तो उससे जो पत्थर बनते हैं वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो वोल्केनो के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो जो मैग्मा होता है वो क्रैक्स में कहीं घुस जाता है और फिर वो ठंडा होता है, तो अंदर जो रॉक्स बनते हैं वो इंट्रूसिव होते हैं, ठीक है। बाहर जो होते हैं एक्सट्रूसिव और बाहर, बाहर कैसे बनेंगे? लावा से, ठीक है। नाउ बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैंने ओके एक और क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट आस्क दिस एंड देन आई विल टेक अ पोल। मैग्मा इज द डायरेक्ट सोर्स मटेरियल फॉर विच टाइप ऑफ रॉक? कौन सा रॉक बनता है मैग्मा से? यस प्राची, which rock is formed using magma? Didi, Didi, that META. भाइयों और बहनों, मैंने मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में अभी तक क्लास में डिटेल में नहीं पढ़ाया है। मेटामॉर्फिक रॉक मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। अभी तक हमने इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं यही पढ़ा है। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड द कीवर्ड्स कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रॉक कैसे बना है। नाउ टेल मी कि हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस अगेन? कितने बार ये बात बताऊं? शुरू में मैंने अभी रिपीट करा है मैंने वापस से भी। हाँ प्राची बोलो। Didi, sedimentary rock. प्लीज मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे इस क्लास में कि और कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है जिससे सबको समझ में आए। प्लीज somebody ओके। सो इस वीडियो में वी सॉ के साउथ अफ्रीका में जो डायमंड की माइल्स होती है, किम्बरले करके एक जगह है, वहां पे बहुत डायमंड्स पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत डायमंड्स पाए जाते हैं। सो वो जो है अराउंड अर्थ के नीचे, अर्थ के बहुत नीचे, अराउंड 150 किलोमीटर्स डाउन दी अर्थ, वहां पे ड्यू टू एक्शन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डायमंड्स फॉर्म होते हैं। राइट नाउ डायमंड्स बेसिकली कोल से बनते हैं,
कोल जो है, जो हमारा कोयला होता है, जब उन कोयले की जो खदान होती है बड़ी बड़ी, वहीं पे बहुत नीचे बहुत डेप्थ में आपको डायमंड्स मिलते हैं। तो बेसिकली कार्बन से ही बनता है डायमंड। जब एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्ट करता है उन पत्थरों पर, तब वो क्रिस्टलाइज होके डायमंड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सो ऐसे खदानों से दे गेट आउट दी, जो पत्थर होता है डायमंड का, दे गेट इट आउट, और फिर उसको वापस तराशा जाता है, एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू दी डायमंड दैट यू नो। डायमंड भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग कैरेट्स के होते हैं, अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग डायमंड्स की। ठीक है, नाउ डू यू हैव एनी आइडिया कि हमें इंडिया में कहाँ से डायमंड मिलता है? वेयर इन इंडिया डू वी गेट डायमंड्स फ्रॉम? एनी आइडिया? किसी को भी पता है? यू हैव, ऑल ऑफ यू हैव रेज्ड सो मेनी हैंड्स ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके, आई एम लोअरिंग योर हैंड्स। एनीबडी हैज एनी आइडिया कि कहाँ इंडिया में कोयले बोल रही हूँ, डायमंड you get it from? Yes, Krishna. We get it in mine of gold or earth. Yes, diamond, gold mine. Okay, gold mine Diamond. is, Krishna is saying, I'll tell you, gold Diamond mines mine. आपको कर्नाटका वाले प्लेट्यू में बहुत मिलती है। ठीक है, कोलार, KGF मूवी है ना, बहुत सारे लोग स्टेटस डालते हैं। ठीक है, KGF is कोलार गोल्ड माइन, वहां पे गोल्ड मिलता है, गोल्ड अलग होता है। डायमंड इज डिफरेंट। डायमंड इंडिया में सिर्फ एक ही जगह प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज पन्ना विच इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, MP में पन्ना कोल फील्ड्स हैं, वहां पे ही डायमंड मिलता है और नहीं मिलता। ठीक है, सो नेचुरली डायमंड का जो स्टोन होता है वो नेचुरली ऑकर होता है। इट इज मेड फ्रॉम कोल अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम हाई प्रेशर एंड एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू रिमेम्बर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, देयर आर सम रॉक्स जो हमें नेचुरली, हम जिनको यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं। ये रॉक्स जो होते हैं वो प्राइमरी और सेडिमेंटरी प्लस इग्नियस रॉक्स, इन्हीं का एक टाइप होता है। पर उन रॉक्स पे जब एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करता है तो वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, और फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे मार्बल। ठीक है, मार्बल हम यूज करते हैं कितना सारा, सो मार्बल इज अ एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये किसी डिफरेंट इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फाइज होता है और उससे मार्बल बनता है। स्लेट जो आप यूज करते हैं, स्लेट इज ऑल्सो एन मेटामॉर्फिक रॉक। जेनेसिस, क्वार्टाइज, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, जब उन पे बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करता है तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, एंड जो दूसरे फॉर्म में चेंज होकर रॉक बने वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, we'll watch another video to know how metamorphic rocks are formed. सभी बहुत केयरफुली वीडियो देखेंगे to know how these rocks are formed. ठीक है, Here is from www.makemegenius.com. If you want to see more science videos, go to www.makemegenius.com. Oh, yeah, it is free. Now, let's learn about the third type of rock. These are called metamorphic rocks. Let's again focus on names. Metamorphic is derived from the word morph, which means to be transformed or to change. Yes, you understood right. Metamorphic rocks are changed forms of igneous and sedimentary rocks. Metamorphic rocks are formed when other types of rocks are changed due to a lot of heat or pressure. See in this picture, a lot of heat from molten magma and a lot of pressure from upper layers is causing a few of the sedimentary rocks to change. Marble and slate are two types of metamorphic rocks. Marble is formed when limestone, which is a sedimentary rock, comes under a lot of pressure from above. Similarly, slate is formed when clay is changed by heat and pressure. I'm sorry. Transformed, or metamorphic rocks are changed forms of igneous and sedimentary rocks. Metamorphic rocks are formed when other types of rocks are changed due to a lot of heat or pressure. See in this picture, a lot of heat from molten magma and a lot of pressure from upper layers is causing a few of the sedimentary rocks to change.
Marble and slate are two types of metamorphic rocks. Marble is formed when limestone, which is a sedimentary rock, comes under a lot of pressure from above. Similarly, slate is formed when clay is changed by heat and pressure. Okay, I think the video is okay. So जैसे हमने वीडियो में देखा कि जब किसी भी टाइप के रॉक पे एक्सट्रीम प्रेशर या हीट एक्ट करता है तो वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है. फॉर्म को चेंज करना ही मॉर्फ का मतलब होता है टू चेंज इट्स फॉर्म्स. तो अपने फॉर्म को जो चेंज कर लेते हैं रॉक्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्टिंग ऑन देम, देन दे कन्वर्ट देमसेल्फ टू अ डिफरेंट रॉक एंड दोज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कोई नए टाइप के रॉक्स नहीं होते हैं, वो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं जनरली, जिन पे बहुत हीट और प्रेशर एक्ट करता है. ठीक है. सो दे स्टार्ट ऑफ एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ईदर इग्नियस और सेडिमेंट्रीज, often have a stripped appearance as a result of stretching and squeezing. क्योंकि बहुत हीट और प्रेशर लगता है तो बहुत ज्यादा हीट होता है तो कभी कभी मेल्ट हो जाते हैं रॉक्स, फिर अगर ठंडा हो गया तो फिर वो जम जाते हैं. सो बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होती है, तो इसलिए इन रॉक्स में स्ट्रिप्स जैसे बन सकते हैं. ठीक है. सो मार्बल, स्लेट, दीज आर एग्जाम्पल. और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे लस्टर, अपीयरेंस इनका बहुत अलग अलग होता है. ठीक है. Now we will quickly read through the text and I will explain. Listen very carefully. ठीक है. Anas, can you read this for us? Anas, read the first line for us. Volcanoes. दीदी, पढ़ो. volcanoes activate and other earth movements cover style take place on the earth. Volcanic activities and other earth movements constantly take place on the earth. ठीक है. तो अर्थ पे हमेशा या तो वॉल्केनिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं हो रही होगी, या टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है प्लेट्स का, वो सब हो रहा होगा. कुछ ना कुछ एक्टिविटी अर्थ में हमेशा होती रहती है, हमें फील हो या नहीं हो, पर अर्थ में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ ये सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं. या तो अंडर वाटर कोई वॉल्केनो इरप्ट हो रहा होगा, या फिर बाहर कोई वॉल्केनो इरप्ट हो रहा होगा. देयर आर वॉल्केनोज जो हमेशा इरप्ट होते रहते हैं. तो कुछ ना कुछ ये एक्टिविटीज हमेशा होती रहती हैं अर्थ पे. Okay, Harsh, you read next. Yes, Didi. Read karo next. While those are oscillating, the source for symmetry rocks in that. जब हमें वर्ड पढ़ते नहीं बनता तो हम वर्ड को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे वर्ड्स में और फिर उनको रीड करते हैं. ठीक है. मेरे बात रिपीट करना हर्ष. while those are occurring the igneous or sedimentary rocks in that region are subjected to tremendous pressure and head. This leads to charge in the nature as well as the chemical composition of the original
original rock. right? While these are occurring, है ना, जब ये जो अर्थ में जो एक्टिविटीज होती रहती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज या अर्थ के मूवमेंट्स कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, तब ये जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं उस रीजन में, उस एरिया में जहाँ पे ये वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है या कोई भी अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, तो उस रीजन के जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडरस प्रेशर एंड हीट। तो उन रॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है और बहुत हीट, बहुत टेम्परेचर भी वहां का बढ़ जाता है। सपोज अगर वोल्केनो इरप्ट हो गया और वहां पे ऑलरेडी रॉक्स थे, तो वोल्केनो लावा जो होता है वो बहुत गर्म होता है, राइट? सो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं उनके नेचर में चेंजेस आते हैं, प्लस उनके केमिकल कॉम्पोजिशंस में भी चेंज आ जाते हैं, राइट? So there is a change in the nature and the chemical compositions of the original rock. तो ये जो रॉक था igneous या sedimentary rock, अब उसका जो नेचर है और उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो हीट और प्रेशर की वजह से चेंज हो गया, ठीक है? नाउ इसके बाद क्या हुआ? यह श्रावणी रीड, श्रावणी। Yes, Didi. हाँ रीड। The crystals in the original rocks get recrystallized. Recrystallized. This means the rocks get metamorphosed. Metamorphosed. The rocks formed through such a process are called metamorphic rocks. ओके, सो जो क्रिस्टल्स हैं ओरिजिनल रॉक के, वो वापस से रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है? उनका क्योंकि चेंज होता है केमिकल कॉम्पोजिशन, सो दे गेट रिक्रिस्टलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि जो पत्थर था वो मेटामॉर्फ हो गया है, ठीक है? मॉर्फ होना का मतलब अपना फॉर्म चेंज कर लेना, ठीक है? रूप बदल लेना को भी मॉर्फ करना कहते हैं। सो ये जो था, क्योंकि हीट और प्रेशर लगा, तो जो ओरिजिनल रॉक था उसने अपना चेंज कर दिया, अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर लिया। इसकी वजह से जो रॉक बना उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है? नाउ विवेक, प्लीज रीड फॉर अस द नेक्स्ट लाइन। विवेक। Vivek, Yash, I'm marking absent for both of you. Kedar, you read. Kedar. Kedar. Harshada, you read. Harshada, read. Harshada, are you there? Dhanshri, you read. These rocks do not contain fossils. These rocks are heavy and hard. Coal gets metamorphosed when it undergoes heavy pressure and intense heat. After coal gets metamorphosed into diamond, its price increases. We burn coal. Didi, wait. I can't see. Coal while we use diamonds as ornaments. Okay, thank you so much, Dhanshri. So ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनमें फॉसिल्स नहीं होते,
ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक्स में हमने पढ़ा था फॉसिल होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होते हैं राइट। ये रॉक्स जो होते हैं दीज आर हैवी एंड दीज आर हार्ड, ठीक है। याद रखो हमने जब इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स पढ़े थे तो इग्नियस रॉक में हमने पढ़ा था प्यूमिक स्टोन होता है, वो तो फ्लोट कर जाता है, पानी में फ्लोट करता है, वो इतना हल्का होता है, वो पोरस होते हैं, है ना, दे आर नॉट एज हैवी वेटेड। पर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ये बहुत हार्ड और बहुत हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं राइट। डायमंड इज लाइक दी हार्डेस्ट नोन मटेरियल, डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल होता है जो पाया जाता है राइट, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन मटेरियल। सो ये जो रॉक्स होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, दीज आर वेरी हैवी एंड दीज आर हार्ड। क्यों? क्योंकि इन पे बहुत प्रेशर और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये टूट के भी बनते हैं तो बहुत ज्यादा क्लोजली दे गेट अटैच्ड टू ईच अदर, तो बहुत ही हार्ड रॉक्स होते हैं ये, ठीक है। फिर एक नोट है कि कोल जो होता है, कोल मेटामॉर्फ होता है और फिर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डायमंड, ठीक है। नाउ कोल जो है, कोयला कितना सस्ता होता है अगर हम डायमंड से उसको कंपेयर करते हैं तो राइट, कोयला तो ऐसे ही मिल जाता है, वी गो एंड बाय कोल, दो अभी महंगा हो गया पर इतना महंगा नहीं है जितना डायमंड है राइट, डायमंड तो बहुत महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। सो हम कोयले को तो जला देते हैं पर वही कोयला जब प्रेशर और हीट उस पर अप्लाई होता है तो वो हीरे में बदल जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू और अ डायमंड जो बहुत ज्यादा महंगा होता है राइट, एंड वी यूज डायमंड एज एन ऑर्नामेंट, ओके। बट कोयले को तो हम जला देते हैं। सो जब आप हाई प्रेशर और हाई प्रेशर पे तपते हो ना, अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो यू कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू डायमंड्स, ओके ग्रेट। सो I'll quickly tell you this fact, जो ताजमहल है आगरा में, it is built, वो ताजमहल हमें पता है, it is built of marble, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। ये जो रॉक है ये मकराना राजस्थान की एक साइड से लेकर आया गया था, जो जिससे ताजमहल बना था, ठीक है। नाउ अगर आप नर्मदा रिवर विच इज इन मध्य प्रदेश से फ्लो करती है नर्मदा रिवर, वहां पे भेड़ाघाट करके एक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ संगमरमर के पत्थर हैं पूरे में, ये इसके बीच से आप ये जो फोटो देख पा रहे हो उसके बीच से नदी बहती है, अशोका मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे। सो ये जो रिवर, ये जो पत्थर है, दिस इज ऑल्सो क्या, दीज आर ऑल्सो मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। So now we have actually studied about these three types of rocks: igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. Now give me a sign and tell me how well you understand ke what are metamorphic rocks, what are igneous, and what are sedimentary rocks. Be very honest. ठीक है? Okay. ठीक है, इन योर टेक्स्ट बुक्स, थैंक यू फॉर दोज हु हैव टाइप्ड ऑन द चैट बॉक्स, बाकी जिन्होंने नहीं किया है प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स ऑन द चैट बॉक्स। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे अगर देखोगे ना, ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, इस ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे तो देयर इज दिस चार्ट, ठीक है, ये एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में। तो इसमें बताया है कि ग्रेनाइट जो है, इग्नियस रॉक होता है ग्रेनाइट, एक ग्रेनाइट पे जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करता है तो वो जेनेसिस में बदल जाता है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सिमिलरली बसाल्ट जो हमने पढ़ा, इट इज एन इग्नियस रॉक, पर मेटामॉर्फ होके वो दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। लाइमस्टोन जो चूना होता है राइट, लाइमस्टोन चूने का पत्थर जो है, लाइमस्टोन पे जब बहुत प्रेशर और हीट लगता है तो वो मार्बल बन जाता है, कोल डायमंड बन जाता है, सैंडस्टोन क्वार्टाइज बन जाता है, शेल स्लेट बन जाता है राइट। सो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, तो आपको पता चलेगा कौन से रॉक मेटामॉर्फ होके कौन सा रॉक बन जाता है। सो गो थ्रू दिस टेबल वंस, एक बार, ठीक है। Great. Now we have one more topic remaining in this chapter, which is very simple, and I'll quickly complete that topic. आज की क्लास मैंने 8:15 तक इसलिए रखी थी, so that we complete this chapter. Then I'll tell you कि आपके unit test में क्या क्या आएगा. Okay. So drink some water. If you want, take a 1-minute break, drink some water, and then we will come back and complete the last topic of the chapter. ठीक है? This is the last topic that we have to cover. Nothing very serious. We will see this map. This is the map of Maharashtra. ठीक है? महाराष्ट्र का मैप है, बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे ये मैप, ठीक है। Now you can see color coding, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है,
जो लाइट ग्रे कलर से जो एरियाज है वहां पे बसाल्ट रॉक पाया जाता है. बसाल्ट इज एन इग्नियस रॉक. ठीक है. डार्क ग्रे कलर से ग्रेनाइट रॉक पाया जाता है. जहां पे भी डार्क ग्रे कलर है वहां ग्रेनाइट है. एंड देन देयर इज अ पिंकिश शेड व्हिच इज अ लेटराइट. इट इज अ टाइप ऑफ रॉक. एक दो जगह पे वो पाया जाता है. एंड जो व्हाइटिश शेड है वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं. ठीक है. नाउ हाय एवरीबॉडी फ्रॉम जानवीज हाउस. जानवी प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन. बाद में सबसे हेलो हाय करेंगे. नाउ लुक एट द मैप वेरी केयरफुली फॉर 30 seconds. Take a look at the map and on the chat box you have to tell me the name of the districts. ठीक है. उन जगहों के नाम बताओ जहां पे बेसाल्ट के अलावा रॉक्स पाए जाते हैं. ठीक है. फर्स्ट नेम, राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स दिख रहे हैं कि पाए जाते हैं. लुक एट द मैप केयरफुली. यू कैन सी जो व्हाइटिश कलर से जहां शेड है वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं. टाइप द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जहां सेडिमेंट्री रॉक्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है. I will also ask somebody. Sainath, can you unmute yourself? Look at the map and tell me कि sedimentary rocks किन districts में पाए जाते हैं. Thank you, Ayan, for typing on the chat box. Sakshi, Krishna. Sainath, please unmute yourself and we'll be very quick. ठीक है. Yes, Sainath. We have to do the attendance also, बच्चे, so be very quick. Okay, I see most of you typing Aloka Amravati on the chat box. और कहाँ पे है Aloka Amravati? Nand Darbar. Okay, some of you have typed that, right? True. Dhule and Jalgaon also, right? Correct. So हम जो white color से देख रहे हैं इन सारे districts में sedimentary rocks पाए जाते हैं महाराष्ट्र में. ठीक है. I'll annotate it also जिससे आपको पता चल जाए. This जो districts हैं धुले में, जलगांव में, अकोला में, some area of बुल्धाना and अमरावती, इन areas में sedimentary rocks पाए जाते हैं, right? लेटराइट कहाँ पे पाया जाता है? आई थिंक सिंधबर्ग जो नीचे एरिया है कर्नाटका के पास, सिर्फ वहां पे लेटराइट करके एक रॉक है जो सॉइल का भी एक टाइप होता है, वो वहां पाया जाता है. ठीक है. ग्रेनाइट रॉक कहाँ पे दिख रहा है आपको? ग्रेनाइट रॉक देखो. ग्रेनाइट रॉक कहाँ पे है? नासिक में ग्रेनाइट इज व्हाट? I don't see नासिक में ग्रेनाइट. Where is नासिक? तो मुझे नासिक भी नहीं दिख रहा है. It must be near Pune. Yeah. नासिक में there is no ग्रेनाइट बच्चे. ग्रेनाइट देखो कलर ग्रेनाइट का डार्क ग्रे कलर से स्पॉटेड है. ध्यान से देखो. I can see granite in this area. गाडचिरोली, चंद्रपुर, गोंडिया, नंदेद. These districts, in these districts, यहाँ जहाँ डार्क ग्रे कलर है यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है महाराष्ट्र में. ठीक है. सिर्फ एक ही जगह है जो कि साउथ महाराष्ट्र में जहाँ पे लेटराइट रॉक पाया जाता है. मोस्टली कौन सा रॉक पाया जाता है महाराष्ट्र में? सबसे ज्यादा कौन सा रॉक पाया जाता है महाराष्ट्र में? साक्षी, यू टेल मी. मैप देख के सबसे ज्यादा कौन सा रॉक पाया जाता है महाराष्ट्र में? रेस्ट ऑफ यू ऑन द चैट बॉक्स. थैंक यू रिया. यस साक्षी. What did he? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सा रॉक पाया जाता है? व्हाट कैन यू सी इन द मैप? Major rocks. हाँ, सबसे ज्यादा मेजर कौन सा रॉक पाया जाता है बताओ. कौन से कलर सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको महाराष्ट्र में? Basalt. है ना. बेसल्ट पाया जाता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में. बेसल्ट करके रॉक पाया जाता है. विच टाइप ऑफ रॉक इज बेसल्ट? विच टाइप ऑफ रॉक इज बेसल्ट? Basalt.
लेट मी टेल यू एन इन्फॉर्मेशन साक्षी, बहुत पहले, बहुत साल पहले महाराष्ट्र जो है वो डेक्कन प्लेटू, डेक्कन ट्रैप का पार्ट था। डेक्कन ट्रैप में बहुत सारे वोल्केनोस थे पहले, फिर वो सब वोल्केनोस कभी इरप्ट हुए एंड देन दे बिकेम प्लेट्यूज। तो गैस करके बताओ कि कौन से सबसे ज्यादा पत्थर मिल सकता है इस एरिया में? वोल्केनोस थे यहाँ पे, कौन सा पत्थर होगा यहाँ सबसे ज्यादा? वोल्केनो। वोल्केनोस थे, तो कौन सा पत्थर हो सकता है? व्हाट कैन यू गेस? टाइप ऑफ रॉक यू हैव टू टेल मी। इग्नियस होगा, सेडिमेंट्री होगा कि मेटामॉर्फिक होगा? इग्नियस। यस, करेक्ट। ठीक है, बहुत सालों पहले महाराष्ट्र जहां आज है वहां पे डेक्कन ट्रैप था, बहुत सारे वोल्केनोस थे, वो वोल्केनोस पहले इरप्ट हुए एंड देन दिस इज नाउ अ प्लेट्यू। जहां पे भी वोल्केनोस थे वहां पे सबसे ज्यादा कौन से पत्थर होते हैं? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक। टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बसाल्ट पाया जाता है। महाराष्ट्र के जितने भी फोर्ट्स हैं, जितने भी जो भी मेजर पुराने हिस्टोरिकल साइट्स हैं, फोर्ट्स हैं, वो सब बसाल्ट से बने हुए हैं। ठीक है, बसाल्ट इज यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स। मोस्टली सारे फोर्ट्स यहाँ पे बसाल्ट से बने हुए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बसाल्ट रॉक ही पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, यस। so that was it. इतना सारा जो यहाँ पे स्लाइड में you can see the text, it is all about this. I'll quickly read it because time हमारे पास कम है and I'll explain. The basalt rock is formed out of volcanic eruptions which is spread over a vast region of our state. तो महाराष्ट्र में basalt rock सबसे ज्यादा पाया जाता है because volcanic eruptions यहाँ बहुत पहले हुए थे, right? Granite rock is found in the eastern part and the south Konkan area. Granite is a sedimentary, granite जो rock है, it is also an igneous rock. ये भी आपको eastern parts और south Konkan area में पाया जाता है. लेटराइट करके एक रॉक है जो ऐसा दिखता है, मैंने इमेज भी लगाया हुआ है ब्राउनिश कलर का। लेटराइट एक सॉइल भी होती है, ठीक है, सॉइल मिट्टी का भी एक पार्ट होता है, तो बहुत मिट्टी जैसा ही रॉक, मिट्टी टाइप ऑफ इकट्ठा होकर रॉक बन जाती है। ऐसे आपको रोड के किनारे बहुत रॉक्स मिलेंगे ये, तो ये लेकिन मोस्टली कोंकण एरिया में पाए जाते हैं लेटराइट रॉक्स। ठीक है, now because of the thick and extensive layers of basalt, Maharashtra does not have large reserves of mineral wealth. क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारा, बहुत थिक आपको बेसाल्ट रॉक्स मिलेंगे, पहाड़ियों पे हर जगह पे बहुत ज्यादा बेसाल्ट रॉक है, इसलिए ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे नहीं है, इस एरिया में ज्यादा मिनरल्स नहीं है। इसलिए जो माइनिंग एक्टिविटी है महाराष्ट्र में मोस्टली साउथ और ईस्ट महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, हम मैप में देखेंगे तो साउथ महाराष्ट्र इस एरिया में, या फिर ईस्ट एकदम जो छत्तीसगढ़ के पास जो एरिया है जहाँ पे ग्रेनाइट स्टोन पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको माइनिंग मिलेगा। बाकी सारे एरिया में क्योंकि बेसाल्ट है तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता महाराष्ट्र में। ठीक है, बेसाल्ट रॉक जो आप देख रहे हो फोटो में, जनरली बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है या स्ट्रक्चर्स बना, स्टैच्यूज बनाने में यूज होता है। ठीक है, ग्रेनाइट जो अपना प्लेटफॉर्म होता है, किचन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जो नीचे मार्बल वगैरह लगते हैं, ज्वेलरी में भी ग्रेनाइट यूज होता है, फ्लोर पे यूज होता है, बाथरूम में जो पत्थर लगते हैं ये सब ग्रेनाइट से बनते हैं। ठीक है, लेटराइट सॉइल रॉक दोनों का टाइप होता है। जनरली बहुत पहले इनको मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स बनाने में यूज किया जाता था। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ये रॉक्स। ठीक है, so this is all about distribution of rocks in Maharashtra. Now so in this chapter we have actually completed our understanding of different types of rocks, the 3 types of rocks, what are the use of these rocks, where these rocks are distributed over Maharashtra, and we can now compare and find difference between all these types of rocks. तो हमने पूरे चैप्टर में ये चीजें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, and there is a very beautiful quote that I want to end this class with, and that is the beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. ठीक है, पैसा चोरी हो सकता है, कार, घर, इज्जत, सब कुछ छीनी जा सकती है, बट आपकी जो लर्निंग है, आपका जो नॉलेज है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट? सो दैट कैन बी द मोस्ट पावरफुल टूल दैट यू हैव. So learn this is the beauty of learning, and I actually love this quote and I wanted to end the class with this quote. So please focus on your learning, अपनी learning पे ध्यान दो। ठीक है, आप ही के काम आएगी, मेरे या किसी के काम में नहीं आएगी, सिर्फ आपके काम पे आएगी। ठीक है,
With this, we end our chapter. Please do read the chapter from your textbook. Chapter number 7, geography. Videos मैं पहले भेज चुकी हूँ, मैं वापस से videos भेजूंगी. Watch the videos to understand the chapter. ठीक है? And try to complete the exercise questions. ठीक है? एक बारी आंसर करने की कोशिश करना. Please digest से या इंटरनेट से कॉपी मत करना आंसर्स. Write it on your own. ठीक है? जितना समझ में आया है उसके बेसिस पे. Okay?